আগেই বলা হয়েছিল সংসদের বাদল অধিবেশনে বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস সরকারকে বেশ চাপে ফেলার চেষ্টা করবে। এ নিয়ে অধিবেশন শুরুর আগে থেকে হোমওয়ার্ক শুরু করে কংগ্রেস। এরপর একের পর এক ইস্যু নিয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছে কংগ্রেস। এবার নতুন ইস্যু পেগাসাস হাতে এসেছে কংগ্রেসের। এমনিতেই এ নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে বিজেপি। তার উপর রাহুল গান্ধী সে নিয়ে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। সংসদে জোরদারভাবে পেগাসাস ইস্যু ওঠানোর জন্য বুধবার বিরোধীদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন রাহুল গান্ধী। পরে বুধবার পেগাসাস কৃষি আইন প্রত্যাহার সহ নানা ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। বিরোধীদের হইহট্টগোল স্লোগানে দফায় দফায় মুলতবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভা। এই পরিস্থিতিতে মোদী সরকারকে আরও কড়া বিরোধিতার সামনে ফেলতে মরিয়া রাহুল গান্ধী সহ গোটা বিরোধী শিবির। সংসদে একযোগে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা নিরূপণে বুধবার কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে বিরোধীদের বৈঠক হয়। তারপর কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, পেগাসাস ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না সরকার। সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। আমাদের ফোনে অস্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারকে জানাতে হবে যে অস্ত্র দেশদ্রোহী ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরে প্রয়োগ করা হলো কেন প্রধানমন্ত্রী এভাবে ফোনের মধ্যে অস্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন? বিজেপির অভিযোগ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে আলোচনা চায় না, তাই হইহট্টগোল করছে। গেরুয়া শিবিরের এই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন রাহুল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমরা কেবল জানতে চাই সরকার পেগাসাস কিনেছিল কিনা। হ্যাঁ কিংবা না, উত্তর দিক সরকার। যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে এটা জানা কাদের কাদের উপরে তা প্রয়োগ করা হয়েছে, কেন সেটা সরকার জানাতে পারছে না। এরপর সংসদ অচল করার অভিযোগ মানছি না। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করছি। যদি আমরা এখন পেগাসাস নিয়ে আলোচনা স্থগিত রেখে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে পেগাসাস নিয়ে আর আলোচনা হবে না। গণতন্ত্রের উপর আঘাতের পরে এ নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদের কথায়, যে অস্ত্র দেশদ্রোহী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত ছিল, সেটা আমি সহ একাধিক বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, বিচারপতি সহ অনেক ভারতীয়র বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয়েছে। আমি অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদীকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি, তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রকে কেন ব্যবহার করলেন? এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 14টি বিজেপি বিরোধী দলের প্রতিনিধি। রাহুল গান্ধীর দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন তারা। আগামীতে মোদী সরকারকে নিশানা করতে বিরোধীরা যে জোটবদ্ধ, তার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বুধবারের বৈঠক থেকে। আগামীতে লোকসভা ও রাজ্যসভাও যে কার্যত অচল হতে পারে, তারও ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে বিরোধী দলগুলির সংসদীয় দলনেতাদের এই বৈঠকে অবশ্য তৃণমূলের কোনো প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। তবে বিরোধী ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में
बात नहीं हो रही है। ये सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है। सवाल एक ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा कैसे? आखिर बीच का रास्ता, क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तरंग टीवी।